Hello everyone. My name is Priyanka. Welcome to today's decoding session of the Hindu 17th of July 2023. From today's newspaper, we will be discussing about India-France relations, combat flood, Article 19, Subclause 2, collegium system, and cheetah. This cheetah is very important with respect to the species asked from the environment section GS paper 3. So from GS paper 3, in environment section, multiple species are always asked in prelims. In the recent prelims, there were many questions which were asked from this species. Okay. Now, let's begin today's discussion about India and France. India and France have completed 25 years of this strategic partnership, and hence this visit is very, very important for both the countries. Geopolitically, also it is very important. So, how this visit will lead us in the future relations of both the countries, or how in the past both the countries have shared importance or given importance to each other. So, basically, we can see here that in this 2-day visit to France of our Prime Minister Narendra Modi, various agreements were signed. Number of defense deals were also done. In this visit, the top agenda was the celebration or the 25 years of the India-France strategic partnership. Okay. Mr. Modi's visit just month before the Mr. Macron is in Delhi for the G20 summit is itself a special one, as he was invited to chief guest at the Bastille Day parade. ये आप सबको अभी तक पता होना चाहिए बिकॉज इट इज इन द न्यूज़पेपर्स काफी टाइम से दैट पीएम मोदी वाज आल्सो इनवाइटेड इन द परेड बेस्टाइल डे परेड जैसे हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है 26 जनवरी सेलिब्रेट होती है उसी तरह से वहां का भी एक बहुत बड़ा इवेंट वेयर ही वाज इनवाइटेड and also he was awarded with the Legions of the Honor Award, which was the highest award given to him. And it is the second time that Indian Prime Minister has been extended this invitation. Before it was Manmohan Singh, Mr. Manmohan Singh in 2009, and now Prime Minister Narendra Modi. So, what agreements were signed? There were two important agreements, if we can divide it broadly. Firstly, there was a strategic roadmap for the next 25 years कि आगे आने वाले 25 सालों में इंडिया और फ्रांस एक दूसरे का कैसे सपोर्ट करेगी या फिर किन चीजों को लेके कॉपरेट करेगी. So this was termed as something Horizon 2047. Please memorize these words. These words are very important. अभी आप इग्नोर कर रहे हो बट प्रीलिम्स में आ जाएगा Horizon 2047 sometimes seen in the news is related to what? एंड देन आपको वहां पे हवा नहीं लगेगी कि ये क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है एनवायरमेंट से रिलेटेड है ये क्या है. ओके so these terms are important. That strategic roadmap for the next 25 years उसको यहाँ पे जो नाम या टाइटल दिया है Horizon 24 इसके अंदर बात कर रहे हैं कि हम कोऑपरेशन करेंगे डिफेंस के अंदर स्पेस के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर क्लाइमेट चेंज ग्रीन ट्रांजिशन एंड एज वेल इन द एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइप. पर एक और रोड मैप जो है वो रिलीज हुआ कि किस तरह से इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके जो इंडो पैसिफिक एरिया है इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें किस तरह से ये दोनों साथ में काम करेंगे जिसमें मिलिट्री हुआ नेवल एक्सचेंजेस हुआ या फिर ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल फंड को लेके बात हुई इन सब को लेके किस तरह से कॉपरेट करेंगे. देखो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहां पे चाइना का डोमिनेंस सबको परेशान कर रहा है. So it's a common concern for India as well, for France as well, and for US as well. तो इसीलिए पहले यूएस के साथ भी इसको लेके डिस्कशंस हुए थे बट अभी जब हम फ्रांस के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो यस इन द टर्म्स ऑफ द इंडिया एंड फ्रांस with respect to the Indo-Pacific, they both can, work together because their concern is common. That is the Indo-Pacific region. Now, if I talk about the strategic
relationship between both the countries. 25 years are, almost 25 years completed. In the broader picture, the France-India strategic is built on the respect for each other's strategic autonomy. इंडिया देखो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का क्या मतलब है इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है ध्यान से सुनेंगे दैट इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री दैट मीन्स व्हाट that whatever we do within the boundaries of our country, no other country has right to interfere in our internal matters. I repeat, I reiterate my statement. What does a sovereign country means? देखो ये sovereignty आपके इंडियन पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंस रखती है तो sovereignty means a country within its border if the country is doing anything so no other country has right to interfere in the internal matters. ठीक है सेम थिंग विद फ्रांस फ्रांस इज ऑल्सो सॉवरेन कंट्री तो दोनों कंट्रीज ने इंडिया एंड फ्रांस एक तरफ इंडिया है और एक तरफ फ्रांस है इन दोनों का अगर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या रिलेशनशिप का एक मैं ओवरव्यू दूं तो बोथ कंट्रीज हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड ईच अदर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी that whatever France is doing in its country, India has never commented on it. France has never commented on it. How? देखो, France has remained steadfast in its refusal to comment on the India's internal affairs, while France has taken a leading role in the Western pushback to Russia war in Ukraine. It has not joined the other Western countries in publicly exhorting India to change its stand. रशिया यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में भी जब यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज पुश ऑन कर रही थी इंडिया जैसी कंट्रीज को तब भी फ्रांस ने इंटरफेयर नहीं किया इन द मैटर ऑफ इंडिया So if we talk about such cooperation at the international forum, that they are not interfering in each other's sovereignty, more we can see over here is 1974 and in 1988. ठीक है वेस्टर्न कंट्रीज वर पुटिंग सैंक्शंस इन इंडिया कि आप लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण जैसलमेर at that time as well if so this okay I think this is not visible clearly see from this point I want to explain you its historical context कि पास्ट के टाइम से भी फ्रांस और इंडिया ने दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की जो ऑटोनॉमी है उसको कैसे मेंटेन किया so it was the time of 1974 and 1988 when Western countries were pushing to put sanctions on the India for performing its first ever nuclear test. But that time also France did not join that Western countries group. It even stepped in with the uranium supplies to the power the Tarapov reactors जबकि उन्होंने तो और हेल्प करी by supplying the uranium supply which is important with respect to the nuclear test. फिर अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सबको पता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है एक रिजोल्यूशन पास कर रहा है जिसमें वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि मणिपुर वायलेंस में जो कुछ भी हो रहा है उसमें ह्यूमन राइट का वायलेशन है रिलीजियस इश्यूज की फ्रीडम को वायलेशन बिकॉज एज पर द यूरोपियन पार्लियामेंट they are taking the Manipur violence as not as an ethnic clash, but they are seeing it as a direct attack on the Christianity. जिसको इंडिया ने क्लैरिफाई भी किया कि it is not a religious matter. It is not about that someone is attacking the Christianity population. It is a ethnic clash जो कि historically भी काफी टाइम से होता हुआ आ रहा है. तो ऐसे टाइम पे जब यूरोपियन पार्लियामेंट इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है इस टाइम पे भी जब विजिट हुई है फ्रांस ने इस मैटर पे कोई कमेंट नहीं किया this shows the audacity this shows the beautiful way of France to respect the India's internal matters the sovereign matters all right similarly the PM Narendra Modi from our country has done the same thing जब वो वहां गए he also did not comment on anything related to recent protest recent जो दंगे फसाद हो रहे हैं वहां पे in the France with respect to a killing of a teenager. Okay, so this is how we can say that both the countries are respecting each other's sovereignty, internal matters, strategic autonomy. Now, further, neither country has any desire to pull the other into a coalition
grouping or aligns the other is a part of both team content with the success in the relation. अब ये जो bilateral relations है, इनका कोई इरादा नहीं कि आप किसी एक तीसरी कंट्री को लेके आओ और हम एक ग्रुपिंग बनाए, जैसे यूएस करता रहता है, क्वाड बनाता है, ठीक है, फिर वो कभी कभी उसने जापान के साथ मिलके कुछ बनाने की कोशिश करी थी. So in this and many other ways, the relationship has proven itself to be different from other major partnerships that India has built across the world, explaining both the symbolism and the substance of PM's visit there. अगर आप मैं इस इंडो फ्रांस रिलेशंस के बारे में बात करूं तो इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? देखो, बैलेंसिंग द चाइना तो हमने इनिशियली डिस्कस कर लिया था, that they have a common concern with respect to the Indo-Pacific, that their relationship aims to balance the China's influence in the Indian Ocean, more specifically Indo-Pacific region. Second, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, अब हम थोड़े से एक एक डाइवर्सिफाइड कंटेंट में समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया है और जो फ्रांस है, ठीक है, दोनों कंट्रीज की जो ये बाइलेटरल रिलेशंस है वो किस तरह से अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाइड है. जैसे ही 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, दैट वाज द टाइम उसके बाद में कि इंडिया और जो फ्रांस है दोनों ने एक बाइलेटरल जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश किया फर्स्ट एवर टाइम. फिर हम आते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक डायलॉग है पूरे वर्ल्ड में, फ्रांस वो जो फर्स्ट कंट्री जिसने स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो है साइन किया था इंडिया के साथ में, फॉलोइंग इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, जिसके बाद में 1998 में इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो भी हुआ. और बाकी के जो नेशंस है, जैसे कि आपके पास फ्रांस है, चूज नॉट टू इम्पोज बायोलिटरल सैंक्शंस ऑन इंडिया, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज कर रही थी. अब अगर बात करते हैं डिफेंस कॉपरेशन में, 2017 से 2021 का जो डेटा है, एज पर दैट डेटा फ्रांस जो है सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है. आई रिपीट, एज पर द डेटा 2017 एंड देखो 2022 और 23 का डेटा मत लेना, वो अभी सर्वे वगैरह आएगा उसके अकॉर्डिंग विल अपडेट दिस डेटा. पर 2021 तक की अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में, द फ्रांस इज ऑन द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर. और हम लोगों ने बहुत सारी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है वो करी, जैसे कि वरुणा है विद रिस्पेक्ट टू द नेवी, गरुड़ विद रिस्पेक्ट टू द एयरफोर्स एंड शक्ति विद रिस्पेक्ट टू द आर्मी. बट व्हाट आर द चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? देखो, इंडिया और जो फ्रांस है, दे हैव वेरी ब्यूटीफुल बायलेटरल रिलेशनशिप. द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल हुए, लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है अभी तक, जो कि उनका जो पोटेंशियल है उसको लिमिट करता है कि आप ट्रेड या इकोनॉमिक कोऑपरेशन को दोनों मिलकर इंक्रीज करो. बिकॉज समहाउ फ्री ट्रेड जो अग्रीमेंट है वो एक की है इसके अंदर, ठीक है. और अगर हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी इम्बैलेंस है. इम्बैलेंस का मतलब क्या? वो कंट्री हमें ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, यानी हम उनको पे ज्यादा कर रहे हैं, और हमारी कंट्री जो है उनसे ज्यादा खरीद रही, इम्पोर्ट बैलेंस नहीं है. तो एक इम्बैलेंस है जो कि फ्रांस के फेवर में. प्लस फ्रांस ने अभी बहुत ज्यादा कंसर्न्स भी जताया है कि इंडिया का जो स्टैंड है डब्ल्यूटीओ को लेके, क्लाइमेट समिट को लेके, इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ओके, आई होप नाउ इंडिया फ्रांस का जो रिलेशन है इट इज क्लियर टू एवरीवन. द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम्स विजिट टू फ्रांस is clear to everyone. Okay. Now, coming to our next major topic, it is about combating the flood. In this topic, हम लोगों ने इसको काफी डिटेल में डिस्कशन किया विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल. दैट जो इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, Delhi. These areas are seriously suffering from the floods. But this editorial is telling कि दिल्ली का जो फ्लड है it is different. Different as in why? Because दिल्ली जो सिटी है वो कभी भी फ्लड के लिए प्रिपेयर ही नहीं है. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी फ्लड के लिए प्रिपेयर नहीं है, और ना ही वहां पे कभी इतनी ज्यादा बारिश आती है. तो दिल्ली का जो फ्लड है ये हमारा ध्यान फिर से उस तरफ लेके आ जाता है कि क्या हमें क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्यूना को फिर से फोकस में लाके सोचना चाहिए. समझो इस बात को. एक आपने होता है, देखो यहाँ से बेसिक से पढ़ते हैं, एक होता है फ्लड जो कि न्यूज में है,
अब फ्लड दो तरीके से है, एक है आपके पास नेचुरल फ्लड और एक आप कह रहे हो कि भाई अर्बनाइजेशन की वजह से फ्लड हुआ है। नेचुरल फ्लड जो कि अभी हिमाचल का केस है, व्हाट द केस इज कि एक्सट्रीम रेनफॉल हुई है। ये जो रेनफॉल है वो पहाड़ी एरिया की स्लोप वाले एरिया से जो मिट्टी है वो मिट्टी वहां पे सेचुरेट हो गई है। मिट्टी सेचुरेशन होने के वजह से एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है वो हट गया है। वेजिटेशन अगर हट गया है तो यहाँ पे जो बैरियर था फ्लड के लिए वो नहीं रोक पाए। तो यहाँ पे बहुत तेजी से क्या हुआ, बारिश का स्लो पानी आ रहा था, जिसकी वजह से अब वेजिटेशन हट गया तो वो मिट्टी को रोक नहीं पकड़ नहीं पा रहा है उसकी स्पीड को, और यहाँ पे आपको लैंडस्लाइड दिख रहा है। अब जब लैंडस्लाइड दिख रहा है तो उस लैंडस्लाइड ने एक नेचुरल बैरियर बना दिया है। लैंडस्लाइड ने नेचुरल बैरियर बना दिया है तो फिर से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फ्लड की हो गई। तो बहुत सारे हजार मिलके एक डिजास्टर की तरफ पहुंचे जो कि फ्लड है। लेकिन अब अर्बनाइजेशन का फ्लड क्या होता है, मान लो दिल्ली है, दिल्ली में कभी भी इतनी बारिश नहीं होती तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज के लिए आपकी तैयार ही नहीं है, वहां की बिल्डिंग्स इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है। और अगर आप सिटी के बारे में बात करो, इट इज मोस्टली अ पैक्ड सिटी, चारों तरफ से इसकी जो बॉर्डर है वो पैक्ड है, तो पानी निकलने की कोई जगह है नहीं। वहां पे जो रोड्स है, जो गलियां हैं, वहां पे कोई वाटर निकलने की कोई फैसिलिटी है नहीं। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरह से वो बना है उसका कोई तरीका नहीं, वो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट प्रिपेयर्ड इस टाइप की फ्लड के लिए। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है दैट दिल्ली, a city that is not usually associated with the rain, that is brought to a national focus on disasters that lie in the store. क्यों? देखो 9 जुलाई को हुई है 221.4 मिलीमीटर ऑफ द रेन, जो कि पूरा एवरेज निकालो जुलाई मंथ में दिल्ली में जितनी की बारिश होती है उससे भी बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है। एंड येट इसको ठीक देखो, इसको समझो, 9 जुलाई को जो बारिश हुई है वो एवरेज से बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन बाद में जो रेन है वो वहां पे कम हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो फ्लड कंडीशन है अभी भी वहां पे है। मतलब 9 जुलाई का जो बारिश है वो आपकी पूरी जुलाई मंथ के एवरेज से भी ज्यादा हुआ है। उसके बाद बारिश कम हो गई है, ध्यान से सुनो, उसके बाद बारिश कम हो गई है, फिर भी फ्लड जो अभी भी है वहां पे। और जो बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस है, रेड फोर्ट है, ये सब डूबे हुए हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी। So this, however, allied the role of Delhi's infrastructural development through the years has given a short shrift to the restricting construction on the Yamuna floodplain. काफी सालों से बात चलती थी कि यमुना फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और इसका इम्पैक्ट जो है अभी आपको दिख गया है। ठीक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, नाउ यू कैन रीड दिस एडिटोरियल वेरी वेल। Now, coming to the next topic, Article 19, Subclause 2 regarding defamation case on the Rahul Gandhi. ये हमने पहले भी डिस्कस किया, बट नाउ राहुल गांधी जी हैज डिसाइडेड कि वो अपनी जो अपील है वो हाई कोर्ट से सीधा लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो व्हाट इज डिफैमेशन? डिफैमेशन होता है, देखो ये पूरा केस है कि राहुल गांधी जी ने अपने एक स्पीच में ये बोल दिया था दैट हर एक चोर जो है उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है, और इसकी वजह से उनपे डिफैमेशन का जो केस है वो लग गया। डिफैमेशन का मतलब क्या होता है, आप इस तरह से कोई फॉल्स स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करते हो जिससे किसी पर्सन का जो रेप्यूटेशन होता है वो खराब होता है इन द आई ऑफ ऑर्डिनरी मैन, कि अगर कोई आम जनता, आम नागरिक उसको सुनता है तो उसकी वजह से किसी भी पर्सन का अगर रेप्यूटेशन खराब हो रहा है तो वो डिफेमेशन का केस होता है। और आर्टिकल 19 के अंदर अगर आप कहते हो कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारे तो जो मन में हम बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑल्सो प्रोवाइड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, there are certain points where you cannot speak whatever you want. That is freedom of speech and expression. Also, what? The reasonable restrictions. इसको समझो यहाँ पे, ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो फंडामेंटल राइट है, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, when कॉन्स्टिट्यूशन was formed, तो एक डिस्कशन हुआ था कि हम जब सरकार को इतना पावर दे रहे हैं तो ये जो गवर्नमेंट है या फिर ये जो स्टेट है, सिटीजन्स को लेके कुछ भी आर्बिट्ररी लॉ बना सकती है ना। इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड विथ सो मच लॉ, विथ सो मच ऑफ पावर,
then they can misuse their power by arbitrarily making decisions to the citizens. तो गवर्नमेंट का ये जो आर्बिट्ररी एक्शन है सिटीजन्स के लिए, उसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से कंसेप्ट आया फंडामेंटल राइट। तो ऑब्जेक्टिव of insertion of fundamental right in constitution is what? To protect the citizens from the arbitrary actions of the state. और यहाँ से आपके पास आता है आर्टिकल 19, that is freedom of speech and expression, that if you want to express your opinion you are free, but it also brings a reasonable restrictions under article 19 clause article 19 clause 2, which says अगर contempt of court होता है, defamation होता है, incitement to an offense होता है, तो ये सब उसके exemptions में आएंगे, ये उसमें include नहीं होंगे। So there are certain cases as well जो कि जो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी जो केस लेके गए हैं उसको, अब डिसीजन तो कल परसों जब भी ये आता है तब हम उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट फॉर नाउ कुछ पहले के केसेस है डिफेमेशन को लेके, उसको हम समझते हैं। 19 समझते तो क्या है, वी हैव अ ब्रीफ नोटिस इन केसेस में क्या हुआ, बट इफ यू वांट to have a detailed discussions about these important landmark judgments, you can write down in the comment section. We will provide you a detailed videos on these cases. 1965, a famous case that is a Sahib Singh Mehra versus the state of UP. इसके अंदर क्राइटेरिया जो है आइडेंटिफिएबल एंड डेफिनेटिवनेस, इसको डिटर्मिनेंट माना गया कि आपको कलेक्शन ऑफ पर्सन की कैटेगरी में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। फिर आता है आपके पास इलाहाबाद हाईकोर्ट इन द सक्षम गुप्ता केस वर्सेस द आर के करंजिया केस। In this, the RSS have a constitution for itself establishes it as an association of a collection of the person. Same thing 1972। और फिर कोर्ट क्या कहता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है was not a determinant and identifiable body to be considered as a collection of a persons। तो ये कलेक्शन ऑफ पर्सन्स क्या है, जब राहुल गांधी जी की डिफेमेशन के केसेस पे जजमेंट आ जाएगा, we'll have a detailed discussion about this in that video। Now coming to the next डिस्कशन, द कोलेजियम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये तो सर यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कोलेजियम। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा लीजिए, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, एनजेक्स क्या है क्वेश्चन आया हुआ है, कोलेजियम क्या है क्वेश्चन आया हुआ है, और ये सब एक ही टॉपिक। प्रीलिम्स में 99 अमेंडमेंट पूछा है 2 बार, एनजेक्स पूछा है 2 बार, कोलेजियम जो है मीन्स पे क्वेश्चन आया है बहुत 2 बार। So this is the favorite topic of UPSC from polity section, ठीक है। Even the complete judiciary is important. Now ये क्या है, अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, चीफ जस्टिस होना चाहिए इस तरह से, बट उनका अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है उसको लेके यहाँ पे जो झगड़ा है वो बोला गया। झगड़ा या आर्ग्यूमेंट आप जो है बोल सकते हो। देखो इसमें बोलते हैं कि कोई भी अगर जज है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी जज, उनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रेसिडेंट टू टेक द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्लीज फोकस हियर, वी आर सेइंग दैट फॉर द अपॉइंटमेंट, अगर आप किसी भी जज, सुप्रीम कोर्ट की जज का अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन किससे पूछ के, किससे परमिशन ओपिनियन लेके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि जुडिशरी का ही एक ऑर्गन है। फिर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे, यानी कि प्रेसिडेंट पे। ध्यान से सुनो, यहाँ पे आई एम सेइंग दैट वेट, इफ यू वांट टू अपॉइंट द जज, तो ये अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है ये पूछेंगे किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेंगे, मतलब ओपिनियन लेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ओपिनियन देंगे वो बाइंडिंग है, यानी इनको मानना ही पड़ेगा। तो एक तरह से अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सीजीआई कर रहे हैं, बट नाम किसका आ रहा है, प्रेसिडेंट का आ रहा है। So the opinion of CGI must be formed after due consultation with the collegium of at least 4 senior most judges of the Supreme Court.
प्लीज 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 फोकस हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे होंगे 4 जो जजेस हैं, उनका एक कोलेजियम बनता है, या आप ग्रुप बोल सकते हो। ठीक है, 4 जजेस का एक ग्रुप है, जिसको मैंने क्या बोला है, कोलेजियम बोला है। ये कोलेजियम आपस में डिस्कशन करते हैं, सोचते हैं कि हम किसको जज बनाएं, और ये जो डिस्कशन है ये बता देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट को ओपिनियन देता है कि आप जो है ये पर्सन को जज बना लो। अब प्रेसिडेंट जो है उस पर्सन को जो है जज बना देता है। बट यहाँ पे ये जो ओपिनियन का खेल है वो है बाइंडिंग। आप ये क्रोनोलॉजी समझे हो? मैं बोल रही हूँ कि बुक्स में लिखा होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है जज को, लेकिन पूछ किससे रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ओपिनियन ले रहा है और ये ओपिनियन बाइंडिंग है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम कैसे दिया इसने, किसको जज बनाना है, 4 और जज को पूछ के। तो अल्टीमेटली जजेस ही दूसरे जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ हुई? Is this clear? I am saying that president, I am reiterating this line again and again, that president is here and this president has to appoint the judge of a Supreme Court. But this president will seek the opinion of Chief Justice of India, जो कि बाइंडिंग होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे जो भी ओपिनियन देंगे वो इनको मानना ही मानना पड़ेगा। And this Chief Justice of India will consult by a group of 4 judges, जिसको हम कोलेजियम बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये 4 जजेस के जो ग्रुप है, इन्होंने डिस्कशन किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताया, ये सीजीआई ने प्रेसिडेंट को ओपिनियन दिया जो कि बाइंडिंग है। तो एक तरह से कोलेजियम ही प्रेसिडेंट जज को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस कोलेजियम सिस्टम इज क्लियर नाउ। ठीक है, so that is the reason we say that is lack of transparency and accountability। और इसको काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट बाय 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आया जिसका नाम था एनजेक, जिसमें द लेड टू द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये था 2014 में, द एनजेक टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। लेकिन 1993 जजमेंट वाज द बेसिस ऑन विच अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डिक्लेयर्ड एनजेक एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इसको रद्द कर दिया, एनजेक एक्ट को ही रद्द कर दिया कि ये इंटरफेरेंस है, ये बेसिक स्ट्रक्चर, आप जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। 99 अमेंड को ही हटा दिया। एनजेक में था क्या, एनजेक में क्या था कि भाई एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, and 2 eminent members that are chosen from the selection committee. But Supreme Court rejected it. So why NJAC was brought to establish a greater transparency and accountability, but was struck down by Supreme Court on the ground that it is against the independence of judiciary, that is the principle of basic structure. अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको भी ब्रीफ में हम देख लेते हैं। Initially there was a tussle between the parliament and the judiciary. दैट क्या अमेंडमेंट जो है उसको हमको लॉ के अंदर इंक्लूड करना ही नहीं करना है, उसमें बहुत बड़े टसल्स हुए थे। अल्टीमेटली जुडिशरी सेड दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू हैव द पावर, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हाथ नहीं लगाओगे, और वो बेसिक स्ट्रक्चर की स्पेसिफिक डेफिनेशन उन्होंने नहीं दी थी। नाउ चीता पैनल वांट्स कूनो चीतास टू अंडरगो द मेडिकल रिव्यू। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज का जो टॉपिक है उसके अंदर रैंडमली कोई भी स्पीशीज अखबार से नहीं रखनी होती है। प्लीज विजिट योर पीवाईक्यू बुक, उसको पढ़ें, वहां पे जो स्पीशीज है उसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़े और मेमोराइज करें। हैव अ स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। तो स्पीशीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एशियाटिक चीता की बात देखो, एक एशियाटिक रीजन होता है और अफ्रीका होता है, दोनों में आपको चीता मिलता है। अफ्रीका वाला जो रीजन है वो वल्नरेबल है, और अपने यहाँ की जो चीता है एशियाटिक चीता वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये इनके होते हैं आईयूसीएन स्टेटस। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द आईयूसीएन स्टेटस, तो इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड अपने यहाँ पे। कूनो नेशनल पार्क है आपके पास एमपी में, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981 एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2018 में इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा दे दिया गया, एंड इट इज पार्ट ऑफ
the Kathiawar Gir dry deciduous forest as well. इंडिया में सेकंड होम है फॉर द एशियाटिक लायन। अब ये चीता को हम क्यों बचा रहे हैं, क्यों उनकी मेडिकल कंडीशन देख रहे हैं, वाई चीता इज इम्पोर्टेंट? हर स्पीशीज का एनवायरमेंट में अपना रोल है। अगर मैं हिस्टोरिकल हैबिटेट के बारे में बात करती हूँ तो ये आपके पास जम्मू से लेकर तमिलनाडु में आपको मिलेंगे। ड्राई जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ही रहते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड है, स्क्रब है या फॉरेस्ट है। प्रे बेस्ड जो है, they generate their own. Cheetahs will help in restoration of the open forest and grassland ecosystem in India. Moisture conservation है, सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ग्रासलैंड्स बढ़ेंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने फटाफट किया था बिकॉज दिस इज मोर रिलेटेड टू द प्रीलिम्स। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. If you want detailed discussions with respect to the IUC and the environmental, please write down in the comment section. आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो एंड वैल्यूबल फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम. Thank you so much. If you like my video, subscribe it, like and share. Thank you.